السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا اپنے ہی یوٹیوب چینل امتیاز اردو آن لائن کلاسز پر میں آپ کا پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں، دبا لیں انشاءاللہ، اور جو بھی نوٹیفیکیشن آئے، ویڈیو اپلوڈ ہو، آپ کے موبائل پر سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے، اس سے پہلے میں نے چیپٹر احمد جمال پاشا کا کرایا تھا، اب میں آپ حضرات کے سامنے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے میں میر امن کا یہ واقعہ اور باغ و بہار کا میں شروع کرتا ہوں۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، وقت کی کمی ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے مطابق دیکھیں اللہ رب العزت کہاں تک ہم کو پہنچاتے ہیں۔ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ دو چیپٹر کر کے کسی نہ کسی حال میں اور صورت میں جو ہے انشاءاللہ میں اپنے منزل مقصود تک اور آپ کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کی میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کے مطابق میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر اچھا لگے تو آپ دعاؤں سے نوازیے گا انشاءاللہ، کہ آپ کا اپنا چینل پھولے اور پھلے اور بھی ترقی کرے، ہے نا۔ چلیے، یہ شروعات ہے انشاءاللہ، اور بھی چونکہ یہ وائٹ بورڈ ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے، ڈیجیٹل بورڈ نہیں ہے، اس میں ٹائپنگ وغیرہ کرنی پڑتی، اس میں اگر ہوتا تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن چونکہ ہم کو اسی پر بھی اکتفا کرنا پڑ رہا ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ باغ و بہار، میر امن، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے، یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے یہ، اس لیے اس سبق کو بہت اہمیت کے ساتھ دیکھیں گے، بہت ہی اہمیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ میر امن یہ کب پیدا ہوئے اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوا، کیا کیا اس نے کتابیں لکھی ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس سے پہلے بات آتی ہے داستان کی، ہے نا۔ تو داستان کہتے کس چیز کو ہے، وہ داستان کی تھوڑی سی میں آپ کو پریبھاشا اور تعریف بتا دوں کہ داستان اس کو کہا جاتا ہے کہ واقعہ اور الگ الگ قصے تو ہوتے ضرور ہیں، بالکل سب آزادانہ قصے ہوتے ہیں، بالکل ایک الگ الگ قصہ اور کہانی جو ہوتی ہے وہ الگ الگ کہانی ہوتی ہے، لیکن اسی قصے اور کہانی در کہانی، کہانی کے اندر کہانی گڑھنا، یہی داستان ہے۔ یعنی ایک کہانی کہہ رہے ہیں، اس واقعہ میں، اس کہانی میں دوسری کہانی اور بھی گھسا دی، دوسری کہانی کو اور داخل کر دیا، اب جو ہے دوسری کہانی بیان کرتے 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 اس کے اندر پھر تیسری کہانی اس کے اندر داخل کر دی، پھر اس کو بیان کرتے کرتے پھر چوتھی کہانی پھر اس کے اندر داخل کر دی، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسی کو داستان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اور اس کے اندر جو ہے جتنی جو دوسری تیسری چوتھی کہانی جو آپ نے شروع کیا اور اس کے اندر داخل کیا ہے، تو وہ کہانی الگ الگ مستقل ایک چیپٹر ہے، الگ ایک کہانی ہے۔ لیکن جیسے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، پٹنہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پٹنہ زو کی اگر آپ بات کریں گے کہ وہاں میں نے کیا کیا دیکھا ہے نا، کس طریقے سے ہم گئے ہیں، لیکن کیا کریں گے، اب اس کی نہ بات کر کے آپ کیا بات کریں گے، ہم پٹنہ پہنچے، پٹنہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، ریلوے اسٹیشن پر کیا کیا ہوا، کیا کیا میں نے دیکھا، ہم اب اس کی بات کرنے لگے۔ اب کسی چائے والے کی دکان پر گئے، چائے والے سے روپے پیسے لینے میں کیا کیا باتیں ہوئی، ہے نا، کس طریقے سے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، کسی کے ساتھ آپ کا غلط رویہ اختیار ہو گیا، اب اس کی بات اس کو بیان کرنے لگے، اس کا چال چلن کیسا تھا، اس کے طرز، اس کے بات چیت کرنے کے طریقے کیسے تھے۔ آپ پٹنہ میوزیم کی بات چھوڑ کر کے، یعنی پٹنہ زو کی چڑیا گھر کی بات چھوڑ کر کے اب ادھر کی بات کرنے لگے، تو پھر گھوم پھر کر کے جو ہے، حالانکہ یہ بھی ایک الگ کہانی اور واقعہ ہے، ایک آزادانہ کہانی ہے، ایک اسی چیز کو داستان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ داستان کے اندر قصے اور کہانیاں تو ہوتی ہے، لیکن سارے قصے کہانیاں الگ الگ اگرچہ سب ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سارے قصے اور کہانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس کو الگ کر کے دیکھا جائے تو سب بالکل الگ الگ قصے کہانیاں ہیں، لیکن اس کو گلے کی ہار کی طرح، موتیوں کی طرح جو ہے نا، وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو داستان کہا جاتا ہے نا۔ آگے چلیے۔ تو داستان، یہ میر امن نے داستان لکھا ہے، کس نام سے لکھا، باغ و بہار، باغ و بہار،
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। कोई ऐसा पर्चा नहीं है जिसके अंदर बागो बहार के बारे में ना पूछा गया हो। चलिए आगे चलते हैं। दास्तान की जो सबसे पहले शुरुआत में जो चैप्टर है दास्तान, तो उस दास्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर अमन की बात हम अमन की बात शुरू करेंगे। सब रस, ये सब रस हर पर्चे में इस सवाल को पूछा गया है कि सब रस उर्दू की पहली दास्तान का नाम क्या है। उर्दू की पहली दास्तान का नाम क्या है। उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? सब रस है। इस सब रस को किसने लिखा है? ये मुल्ला वजही ने लिखा है। किसने लिखा है? ये मुल्ला वजही ने लिखा है। मुल्ला वजही ने इसको लिखा है। किसको? सब रस को। सब रस ये क्या है? दास्तान है। सब रस क्या है? दास्तान है। और उर्दू की पहली दास्तान है सब रस, जिसको मुल्ला वजही ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका आ गया कि सब रस को किसने लिखा है? मुल्ला वजही ने लिखा है, मीर अमन ने नहीं लिखा है। मीर अमन ने नहीं लिखा है, मुल्ला वजही ने लिखा है। क्या लिखा है? सब रस लिखा है। और ये सब रस जो है उर्दू की पहली दास्तान है, अदबी पहली दास्तान सब रस। क्या है? सब रस उर्दू की पहली अदबी दास्तान है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान है सब रस। क्या है? सब रस उर्दू की पहली अदबी दास्तान। ठीक है, चलते हैं। ये सब रस जो है ये दास्तान कब मुकम्मल हुई थी? 1632 ईस्वी में ये दास्तान मुकम्मल हो चुकी थी। यानी कि लिख करके ये किताब मुकम्मल हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। कब? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में ये किताब मुकम्मल हो चुकी थी सब रस। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली दास्तान है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो दास्तानें लिखी गई है, जो इम्पोर्टेंट सब है, जो पूछा जाता है, उसी चीज को मैंने 2-4 लिख दिया है। हालांकि किताब के अंदर और भी है, लेकिन 2-4 जो ज्यादा पूछ सकते हैं वो इसके अंदर मैंने लिख दिया है। जैसे बागो बहार तो ही है। बागो बहार मीर अमन ने लिखा है। किसने लिखा है? मीर अमन ने बागो बहार लिखा। मीर अमन बागो बहार, तो बागो बहार को किसने लिखा है? मीर अमन ने लिखा है। तो बागो बहार किसने लिखा है? मीर अमन ने लिखा है। एक है आराइश महफिल, आराइश महफिल लिखा है, हैदर बख्श हैदरी ने लिखा है। आराइश महफिल किसने लिखा है? हैदर बख्श हैदरी ने। आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी। आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी। नसर बेनजीर, क्या है? नसर बेनजीर। नसर में नून है, निहाल में भी नून है। नसर में नून है, निहाल में भी नून है। नसर बेनजीर निहाल चंद लाहौरी ने लिखा है। नसर बेनजीर किसने लिखा है? निहाल चंद लाहौरी ने लिखा है। ये भी बहुत भी आइए इसको डबल स्टार लगा लीजिए। एक तो डबल स्टार इसको मार लीजिए, है ना। दूसरा डबल स्टार की ट्रिपल स्टार इसको मार सकते हैं। रानी कैतकी की कहानी हर पर्चे के अंदर इसको पूछा गया है। सब रस को भी पूछा जाता है, रानी कैतकी की कहानी भी पूछा जाता है। रानी कैतकी की कहानी डबल स्टार मैंने लगा दिया है। रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान लिखा है। इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखा है। किसने लिखा है? इंशाअल्लाह खान इंशा ने। इंशाअल्लाह खान इंशा ने रानी कैतकी की कहानी लिखा है। और ये मुख्तसर दास्तान है। क्या ये है? मुख्तसर दास्तान है। मुख्तसर दास्तान है ये। क्या लिखा है? मुख्तसर दास्तान है। अलिफ लैला सबको याद रहेगा। अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम की लिखी हुई है। मुंशी अब्दुल करीम की लिखी हुई है। अलिफ लैला किसने लिखा है? मुंशी अब्दुल करीम की ये दास्तान है। मुंशी अब्दुल करीम की ये दास्तान है। फसाना अजाइब मिर्जा रजब अली बेग की है। मिर्जा रजब अली बेग की फसाना अजाइब मिर्जा रजब अली की। किसकी है? मिर्जा रजब अली की। है। किसकी है? मिर्जा रजब अली की है। फसाना अजाइब। अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम की है। अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम की है, याद रखिएगा। अलिफ लैला किसकी है? मुंशी अब्दुल करीम की है। रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखा है। रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखा है। अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम ने लिखा है। फसाने अजाइब मिर्जा रजब ने लिखा है। और यहाँ तक बात हो गई। अब चलते हैं कि मीर अमन का असल नाम क्या है। मीर अमन, है ना। मीर अमन का असल नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आइए है, याद रखिएगा। मीर अमन का असल नाम क्या है? मीर अमन ही है। क्या है? मीर अमन है। क्या है? मीर अमन। और तखल्लुस याद रखेंगे इसका। तखल्लुस क्या? लुत्फ। तखल्लुस क्या? मीर अमन का तखल्लुस क्या है? लुत्फ है। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? लुत्फ। मीर अमन का तखल्लुस
लुत्फ याद रखिएगा। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? लुत्फ है। मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ है, ठीक है। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? मीर अमन की पैदाइश के बारे में तो पता है दिल्ली में हुई है, लेकिन इसके इंतकाल के बारे में कुछ अता पता नहीं है, इसलिए कि पर्दे खिफा में है, कुछ अता पता इसके बारे में फिर नहीं है कि इसके साथ में क्या मामला हुआ है। तो इनकी पैदाइश जो है कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई। किनकी? इनकी से मुराद, यही तो मैंने इसमें इशारा बताया था, सर्वनाम जिसको बोला था, जमीर इसको बोलते हैं। यहाँ मैंने मीर अमन नहीं लिखा, नाम के बदले में, इस्म के बदले में, है ना, नाउन के बदले में मैंने सर्वनाम लगा दिया। क्या लगा दिया? संज्ञा के बदले में मैंने सर्वनाम लगा दिया, नाउन के बदले में प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। ये इनकी पैदाइश कब हुई है? दिल्ली में हुई है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये अतालिक मुकर्रर हुए थे। अतालिक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पढ़ाने वाले, है ना, पढ़ाने वाले। जिस तरीके से किसी तरीके से ट्यूशन वगैरह जब पढ़ाते हैं ना, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए किसी उस्ताद को मुकर्रर कर लेते हैं और अपने बच्चों को नूरानी कायदा वगैरह या कुछ और जो छोटी मोटी किताबें उसको अगर पढ़ाते हैं तो उसको अतालिक कहा जाता है। खैर, मतलब उस्ताद को कहते हैं अतालिक, इस बात को समझिए। अतालिक किसको कहते हैं? उस्ताद को कहते हैं, पढ़ाने वाले को कहते हैं। तो ये मीर अमन अतालिक मुकर्रर हुए थे, यानी अतालिक थे किसके? यानी उस्ताद थे किसके? मीर काजिम अली के। किसके? मीर काजिम अली के। और मीर काजिम अली कौन थे? मीर मोहम्मद काजिम खान कौन थे? मीर मोहम्मद काजिम खान कौन थे? ये नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई थे। नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई थे। कौन? मीर मोहम्मद काजिम खान। मीर मोहम्मद काजिम खान कौन थे? मीर मोहम्मद काजिम खान कौन थे? नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई थे। नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई थे। तो नवाब दिलावर जंग ने अपने छोटे भाई के लिए उस्ताद मुकर्रर कर दिया। किसको? मीर अमन को। किसको? मीर अमन को। अपने छोटे भाई का नाम क्या था? मीर मोहम्मद काजिम खान था। मीर मोहम्मद काजिम खान के लिए उस्ताद बना दिया, इसके लिए उस्ताद मुकर्रर कर दिया। किसको? मीर अमन को। देखिए, और 4 मई 1801 को 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्री हुई। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। और कितने महीने पर इनकी बहाली हुई? तकर्री हुई, यानी बहाली हुई। कितने रुपये महीने पर? 40 रुपये, मात्र 40 रुपये। पूछ सकते, बहुत भी आई है। कितने रुपये महीने पर फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी बहाली हुई, तकर्री हुई थी? 40 रुपये महीने पर। कितने? 40 रुपये महीने पर। 40 रुपये महीने पर इनकी बहाली हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। कब बहाली हुई थी? 4 मई 1801 को। 4 मई 1801 को याद रखिएगा। 4 मई 1801 को दिन की बहाली हुई, लेकिन पीराना साली की वजह से, मतलब ज़ईफ होने की वजह से, कमजोर और बूढ़े हो जाने की वजह से जो है महीने पर 40 रुपये महीने पर इनकी बहाली हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। कब बहाली हुई थी? 4 मई 1801 को। 4 मई 1801 को याद रखिएगा। 4 मई 1801 को दिन की बहाली हुई, लेकिन पीराना साली की वजह से, मतलब ज़ईफ होने की वजह से, कमजोर और बूढ़े हो जाने की वजह से जो है मात्र 6 साल के अंदर ये रिटायर हो गए, सुबुगदोश हो गए। यानी कि 1801 में ये ज्वाइन किया, फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया। और महीना कितना इसको दिया जा रहा था? मात्र 40 रुपये इसको महीना दिया जा रहा था तनख्वाह के रूप में। और जो है 1801 में दाखिल हुए और 1806 में ये क्या हो गए? रिटायर हो गए, सुबुगदोश हो गए। सुबुगदोश का मतलब क्या हो गए? रिटायर हो गए, ठीक है। मीर अमन की जो शोहरत है ये बागो बहार से है। मीर अमन की शोहरत किससे है? मीर अमन के बारे में जो आगे सुनते हैं, ये मीर अमन किससे मशहूर हो गए? बागो बहार। इसने जो किताब लिखी है दास्तान ना, बागो बहार, ये बागो बहार, ये इस दास्तान जो लिखी है किसने है? ये मीर अमन ने जो दास्तान लिखे बागो बहार, इसी बागो बहार की वजह से ये मीर अमन बिल्कुल दुनिया के सामने उजागर हो गए।
दुनिया के समय क्या हो गए, उजागर हो गए बागो बहार की वजह से। अब बागो बहार क्या है, ये दास्तान है। अब बागो बहार भी ये एक तर्जमा है क्या, किस्सा चहार दुर्वेश का किस्सा। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल किया हूँ, उसको देख लीजिए, यहीं पर है। तो मीर अमन की शोहरत, शोहरत का मतलब क्या है, मीर अमन की शोहरत किससे हुई है, यानी मशहूर हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, किससे, बागो बहार से। 1801 में ये किताब मुकम्मल हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, इसको भी देख लीजिएगा। 1801 में ये किताब मुकम्मल हो चुकी थी। कौन किताब, बागो बहार मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन बागो बहार उस वक्त 1801 में इसका नाम बागो बहार नहीं था। बागो बहार उसका उस वक्त इसका नाम नहीं था, बल्कि उस वक्त उसका नाम क्या था, चहार दुर्वेश। क्या था, चहार दुर्वेश उसका नाम था। उस वक्त उसका नाम क्या था, चहार दुर्वेश था। चहार दुर्वेश है ना, किस्सा चहार दुर्वेश। इसी चहार दुर्वेश का ये तर्जमा है। चहार दुर्वेश का क्या है, ये तर्जमा है बागो बहार, है ना। बागो बहार क्या है, किस्से चहार दुर्वेश का तर्जमा है। ये मेन किताब है, इसी का तर्जमा बागो बहार है। तो ये चहार दुर्वेश किताब जो है 1801 में ये मुकम्मल हो चुकी थी। 1801 में ये किताब जो है मुकम्मल हो चुकी थी। 1801 में ये किताब यानी चहार दुर्वेश मुकम्मल हो चुकी थी। नजरे सानी के बाद, दूसरा इंपोर्टेंट, नजरे सानी मतलब जो है दोबारा उसको री जांच है ना, जो दोबारा उसको जांच करते हैं उसको रीजांच कहा जाता है। दोबारा जैसे आप लोग कॉपी जो है मतलब कि लिखते हैं, है ना, कॉपी में लिख दिए, इम्तिहान हाल में लिख दिए, अब उसके बाद कहते हैं भाई चेक कर लो क्या लिखा नहीं लिखा, दोबारा जांच कर लो क्या लिखा नहीं लिखा है, जो छोटा बड़ा उसको देख लीजिए। उसी को नजर सानी, नजर बोला जाता है। नजर को, आंख को देखना, है ना, देखना। असानी का मतलब दो, यानी दोहरी नजर में दूसरी मर्तबा उसको देख लो, है ना, उसी को नजर सानी कहा जाता है। जब किताब लिखी गई, उस किताब लिखने के बाद चहार दुर्वेश को फिर दोबारा उसको देखने के लिए कहा गया कि दोबारा उसको रीचेक कर लीजिए। जब दोबारा जब चेक किया गया तो 1802 में, है ना, सानी के बाद 1802 में इसका तारीखी नाम क्या रख दिया, बागो बहार। ये कह सकते हैं इससे चहार दुर्वेश का ही नाम क्या है, चहार दुर्वेश, चहार दुर्वेश, यानी चहार दुर्वेश, इसी का तर्जमा है बागो बहार, इसी का तर्जमा है बागो बहार, है ना। ये मेन किताब है और इसका तर्जमा किया है बागो बहार, इसका नाम रखा है। तो ये कब नाम रखा गया बागो बहार, 1802 ईस्वी में। कब, 1802 ईस्वी में। लेकिन ये चहार दुर्वेश किताब कब मुकम्मल हुई थी, 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में ये किताब मुकम्मल हुई थी। उसके बाद जो है ये किताब जो है दोबारा नजरसानी किया गया, दोबारा इसको देखा गया। दोबारा देखने के बाद, रीचेक के बाद जो है फिर कहा कि नहीं, इसका नाम जो है बागो बहार होना चाहिए, इसलिए इसका तारीखी नाम 1802 से बागो बहार रख दिया गया है। ठीक है, बागो बहार चहार दुर्वेश का तर्जमा है, वही बात मैंने कही, शायद उसका तर्जमा है। इसको किसकी हिदायत पर लिखा गया है, जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर या उसकी हिदायत पर लिखा गया। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, है ना। जॉन गिलक्रिस्ट की हिदायत पर, किसकी हिदायत पर, किसकी ख्वाहिश पर, किसने कहा था लिखने के लिए कि आप जो है चहार दुर्वेश का तर्जमा कीजिए, है ना। किस्सा चहार दुर्वेश जो किताब है इसका आप तर्जमा करें, ये किसने कहा था, ये किसकी ख्वाहिश थी, ये जॉन गिलक्रिस्ट की, जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश थी कि आप जो है चहार दुर्वेश का एक तर्जमा कीजिए। तो जिसका नाम जो है बागो बहार रख दिया गया है। ये किसने मशवरा दिया था, किसने हिदायत दी थी, यहाँ ये बात आती है, ये क्वेश्चन आता है, किसकी हिदायत पर बागो बहार लिखी गई। क्या क्वेश्चन है, किसकी हिदायत पर या किसकी ख्वाहिश पर, किसकी ख्वाहिश पर, किसकी हिदायत पर ये बागो बहार लिखी गई है। तो किसकी हिदायत पर या किसने मशवरा दिया है, जॉन गिलक्रिस्ट ने। किसने, जॉन गिलक्रिस्ट ने। अच्छा, ख्वाहिश में कवायद और ग्रामर के हिसाब से बताइए इसमें वो कैसी है। ख्वाहिश में ग्रामर के हिसाब से बताइए वो कैसी है इसमें। ये वो मारूफ या वो मादूला या वो मजहूल, वो क्या है इसमें, वो मादूला है। वो मादूला का मतलब क्या हुआ, वो है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जो वो है ना लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं
जाए, मगर पढ़ा नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं? वो मादूला कहते हैं। तो ख्वाहिश, दरख्वास्त, दरख्वास्त, क्या वो तो लिखा जा रहा है ना, वो तो लिखा जा रहा है ना ख्वाहिश में, लेकिन पढ़ा जा रहा है क्या? पढ़ा नहीं जा रहा है। तनख्वाह में, तनख्वाह में भी वही बात है जहाँ मैंने तनख्वाह लिखी थी, ये देखिए इसमें भी वही वो है, वो मादूला है, क्योंकि वो तो लिखा गया है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? वो मादूला। आपके भतीजे को, है ना, आपके जो भतीजा जो है, जो शहजादा है, इसको आप अगर इसको मारेंगे, कत्ल करेंगे तो आप तो बदनाम हो जाएंगे। आपको बदनामी से बचाने के लिए एक काम करता हूँ कि इसको जो जंगल में ले जा करके जो है वहीं पे कहीं तरह इसको दफन कर देता हूँ, गाड़ देता हूँ। आप भी मतलब कि बच जाएंगे और आपकी बदनामी भी नहीं होगी। तो इसके जो चचा को जो है ना, जो बादशाह बने हुए हैं, शहजादा का जो चचा है, तो इसको जो है बड़ी ये बात पसंद आई। कहा कि बहुत अच्छी बात है, खैर चलो तुम ठीक है, जल्दी से इसका ठिकाना लगाओ और मुझे ये खुशखबरी दो। तो ठीक है, तो ये बात फिर उनके पास ये बात कही और भतीजा के पास क्या बात कही? शहजादे के पास कि तुम उनके पास चलो, है ना, क्या नाम है कि मलिक सादिक के पास चलो। और जो है ये इनके पास जब आते हैं, शहजादे के चचा के पास, कहते हैं कि इनको हम निपटा देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? यानी कि एक बिचौलिया का काम कर रहे हैं मुबारक दादा, बिचौलिया का काम कर रहे हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसको जहां चाहो तुम जाकर के निपटा दो। तो वो पहुंचते हैं कहाँ? तो उनको साथ में ले जा करके, शहजादे को मुबारक को साथ में ले जाते हैं और चल देते हैं जंगल की तरफ। और जंगल में जाते जाते क्या होता है कि बहुत दूर, तकरीबन काफी दूर चलने के बाद, काफी दिन चलने के बाद जो है एक जंगल मिलता है। और उस जंगल में जो है एक मंजिल पर पहुंचते हैं। एक मंजिल पर पहुंच करके वो कहते हैं शुक्र है अल्लाह का कि मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। ये मुबारक दादा ने कहा। तो उस बच्चे ने कहा, शहजादे ने कहा कि हे दादा जान, मुबारक दादा जान, ये क्या कह रहे हैं? कहा कि क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा कुछ? तो मुबारक ने कहा उस बच्चे से, शहजादे से, क्या तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो शहजादे ने कहा कि नहीं, हमें तो आपके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या अच्छा ठीक है। उसके आंख में सुलेमानी सुरमा लगा दिया, उसके आंख में, शहजादे के आंख में सुलेमानी सुरमा लगाया और कहा कि जैसे ही सुलेमानी सुरमा लगाया, उसके अंदर पूछा भी गया है सुलेमानी सुरमा लगाने से क्या फायदा हुआ? तो सुलेमानी सुरमा लगाने से क्या फायदा हुआ? अब यहाँ जवाब सुनिए। जब उसके आंख में, शहजादे के आंख में सुलेमानी सुरमा लगा दिया, सुलेमानी सुरमा जैसे ही लगाया, जिन्नात के लश्कर और फौज और उसके घर और तंबूकात उसको नजर पड़ने लगे, है ना। उसके बाद फिर उनके पास जो है देखा कि वहां पर मलिक सादिक वहाँ बिल्कुल बादशाह की तरह बिल्कुल तख्त लगाए बिल्कुल बैठे हुए हैं। अब उनके पास जो है जैसे ही लेके गए, अब हाल चाल, जैसे ही आदमी आते हैं तो हाल चाल कैसे पूछते, आओ भाई बैठ जाओ, खाना पीना खाए कि नहीं। इसी तरीके से मुबारक और शहजादे जब उनके पास पहुंचे, मलिक सादिक के पास, मिल रहा है, मलिक सादिक के पास जैसे ही पहुंचे तो हाल चाल मालूम किया। फिर उसके बारे में पूछा कि ये कौन है? तो पूछा कि ये शहजादे हैं। खाना पीना खिलाने के बाद सारी बातचीत हुई। उसके बाद कहा कि ये शहजादे हैं, आपके जो दोस्त थे उन्हीं के लड़के हैं। इसके चचा ने इसके ऊपर बहुत जुल्म किया है। इसके अब्बा के मर जाने के बाद जो है वो तख्त नशीब बन गए हैं, वो बादशाह बन गए हैं, ये यतीम हो चुके हैं। असल तो इसका हकदार जो है, उस बादशाह बनने का हकदार यही था, लेकिन इसके चचा इस पर जुल्म कर रहा है। तो मलिक सादिक जो है कहा कि ठीक है, मैं इसके हर हत्तल इम्कान में इसकी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा। हालांकि उसके बाद मुबारक ने ये भी कहा कि आप जो है इसकी मदद कीजिए और वो 40वां बंदर इसको अता कर दीजिए जो बिल्कुल जिंदा होकर के इसको ताकत बख्शे और इसकी हुकूमत फिर से लौट आए और ये खुद बादशाह बन जाए। तो कहा ठीक है, मैं वो सब काम करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है ना। मलिक सादिक ने क्या शर्त रखी? कि मेरी भी एक शर्त है। तो कहा कि इस शर्त को अगर पूरा कर लोगे तो फिर मैं जो तुम चाहोगे उस चीज को मैं पूरा कराऊंगा। तो कहा कि क्या शर्त है? शर्त बताइए। कहा कि तुम अभी शहजादे से कहा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम अभी नौजवान हो, इसलिए जरा अमानत में खयानत नहीं करना। तो मलिक सादिक ने अपने जेब से एक कागज निकाला। उस कागज में जो है एक लड़की की, बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। उस लड़की की तस्वीर को जैसे ही दिखाया, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल नशा और बेहोशी तारी होने लगी शहजादे को। लेकिन आखिरकार किसी ने किसी तरीके से संभाला, उसको लेकर कहा कि इस फोटो को देखो और फोटो को देख करके ये लड़की जहां पर भी मिले मेरी जानिब से उसको पैगाम दे देना, निकाह का पैगाम देना। आखिरकार जो है वो अब वहां से चलता है
اور بالکل در بدر شہر شہر قصبہ قصبہ قریہ قریہ وہ جو ہے چکر لگا رہے ہیں کہاں یہ لڑکی ملے، کہاں یہ لڑکی ملے۔ لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے چلتے چلتے جو ہے ایک اندھا فقیر ملتا ہے۔ اسی کی بات کر رہے تھے ہم کہ وہ شہزادے کو ایک اندھا فقیر ملتا ہے، اور اندھا فقیر جو ہوتا ہے کہیں کسی نے اس کو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ایک نوالا ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں دیا، تو اس کے پھر کیا کرتا ہے کہ اس اندھا فقیر کو جو ہے یہ کیا کرتا ہے، ایک اشرفی جیب سے نکال کر دے دیتا ہے۔ ایک اشرفی نکال کر دینے کے بعد جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اے داتا تیرا بہت بہت شکریہ، کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، بہت دنوں سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں، چلو اب کیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو جو ہے اس شہر کا نہیں ہے۔ دادا نے کہا، اس اندھے فقیر نے کہا کہ اس کو شہزادے کو لگتا ہے کہ تو اس شہر کا نہیں ہے۔ تو شہزادے نے کہا کہ ہاں میں غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، میں اس شہر کا نہیں ہوں، یہ میں کسی کی تلاش میں نکلا ہوں، ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں، مجھے اس کا سراغ نہیں لگ پایا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے وہ دادا کیا ہوئے، مطلب اندھے فقیر واپس پلٹ کر چلے گئے۔ لیکن اسی کے پیچھے پیچھے یہ بھی شہزادے بھی چلے، دیکھا کہ ایک عمارت ہے، بہت عالیشان عمارت ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، عالیشان عمارت کے بعد جو ہے پھر اچانک سے جو ہے اچانک سے جو ہے کیا ہوتا ہے، اس ایک فقیر جو ہے ایک عمارت کے اندر گھسا، اور وہ عمارت جو ہے بڑی بالکل جو ہے کھنڈرات میں بدل چکی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ کھنڈرات میں جیسے بدل چکی تھی اس عمارت میں، اسی میں سے اسی کی طرف وہ بڑھنے لگے، کون، یہ اندھے فقیر اسی عمارت اسی بلڈنگ کی طرف گھسنے جانے لگے۔ تو اسی کے پیچھے پیچھے یہ شہزادے چل رہے تھے۔ تو جیسے دیکھا کہ اپنے گھر کے قریب پہنچے، کون، اندھے فقیر اپنے گھر کے قریب پہنچے، تو اس کی بیٹی جو بڑی خوبصورت بیوی تھی، حور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی کہا گیا اس کتاب کے اندر، تو اس نے آواز دی، ابو جان آج اتنی جلدی آ گئے؟ تو اس نے اس نوجوان کا، اس شہزادے کا شکریہ ادا کیا کہ ایک نوجوان نے میری مدد کی، اور اس لیے کافی دنوں سے میں کھایا پیا نہیں تھا۔ اس نے ایک اشرفی دی، میں نے آپ کے ضرورت کے سامان لائے ہیں، کھانے پینے کے سامان لائے ہیں، گوشت لائے ہیں، اور گوشت کے سارے مسالہ وغیرہ لائے ہیں، ہے نا، آٹا مسالہ جتنی چیزیں تھی کھانا پکانے کے لیے وہ ساری چیزیں لائے ہیں، اور آپ کے لیے کپڑے بھی